अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी। पहला, आपको उन लोगों के साथ रहना है जो अंग्रेजी बोलते हों, यानी कि आपको अंग्रेजी में बात करते हुए सुनना है। कन्वर्सेशन, टॉपिक्स, डिबेट्स, ये चीज़ें आपको देखनी है, सुननी है। दूसरा, आपको अंग्रेजी में बात करनी है। दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला होता है सुनना और दूसरा होता है बोलना। सुन कर के और बोल कर के ही आप अंग्रेजी सीख पाओगे। इस बात का अवश्य ध्यान रख लेना। इस वीडियो में मैं आपको पहले किस तरह से हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं वो बात करेंगे। इस टॉपिक पर जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। मैं आज इंग्लिश मीडियम का प्रयोग करते हुए ही आपको सिखाऊंगा। लास्ट में मैं मेन पॉइंट्स को आपको फिर समझा दूंगा। उसके बाद आप वीडियो को दोबारा देख लेना और कोशिश करना कि आप अंग्रेजी इस तरह से ही सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। Achieving fluency in English is a gradual process that involves consistent effort, practice, and exposure to the language. Here are some tips to help you speak fluent English. Immerse yourself in the language. Surround yourself with English as much as possible. Watch English movies, listen to English music and podcasts, and read English books. Immersion accelerates language learning. Practice regularly. Consistency is key. Set aside dedicated time each day for English practice. Regular practice helps in building fluency and confidence over time. Speak, speak, speak. This is the key to learn English. You must try to speak as maximum as you can. The more you speak, the more comfortable you become. Engage in conversations with native speakers, language exchange partners, or even practice speaking alone to improve pronunciation and fluency. If we don't have the facility for the native speakers, at least we can find someone with whom we can speak English. Join language groups. Join English speaking groups or communities either online or in person. Participating in discussions and group activities provides valuable practice and exposure to different accents and expressions, especially in foreign countries. When in educational institutions we find that students come from various countries, and it is the right platform where people come across different accents and expressions. Use language learning apps. Utilize language learning apps that focus on speaking and pronunciation. Many apps offer interactive exercises and real life scenarios for practical language application. Learn grammar in context. Rather than focusing solely on grammar rules, learn grammar in the context of sentences. This approach helps you understand how words fit together naturally in conversation. Expand your vocabulary. Actively work on increasing your vocabulary. Learn new words every day and use them in sentences to reinforce your understanding and application of the language. Watch English news and shows. Stay updated with current affairs by watching English news channels or shows. News programs often use clear and concise language and they cover a wide range of topics. Take language classes. Enroll in English language classes or hire a tutor. Formal instruction provides structured learning and personalized feedback to address specific areas of improvement. This is the digital era, and we can sit by reading at home. We can do all these things by sitting at home. Record yourself speaking. Record your conversations or speeches and listen to them critically. Be your own critic.
This self assessment helps identify areas for improvement, such as pronunciation, intonation, and clarity. Practice with native speakers. Engage with native speakers through language enhanced programs or online platforms. Interacting with those who speak English fluently exposes you to authentic language use and cultural nuances. Read aloud. Reading aloud enhances pronunciation and fluency. Choose books, articles, or even your own writing and read them aloud to practice articulating words and sentences. Join Toastmasters or speaking groups. Toastmasters International is an online and it is a club making program in which people learn English through different clubs. Toastmasters and similar groups provide a supportive environment for honing public speaking skill. Regular participation builds confidence and improves spoken English. Be patient and persistent. Fluency takes time and setbacks are natural. Stay patient, persistent through challenges, and celebrate small victories along the way. Travel or study abroad. If possible, immerse yourself in an English speaking environment. Traveling or studying abroad exposes you to the language on a daily basis, facing you to use it in various situations. Learn new sentences and words. Learn new English sentences and words to enhance English proficiency. Commit to learn new sentences and words daily. This consistent practice fosters language development, broadens vocabulary, and strengthens communication skills, resulting in gradual but significant improvement in overall English proficiency. Points to remember. Remember, becoming fluent in English is a gradual process, and the key is to consistent effort and a positive attitude towards learning. Have some patience. Rome was not built in a day. It takes time to happen things. Give time to time. Enjoy the journey of language acquisition and celebrate the milestones you achieve. देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा आज। हम किस तरह से इंग्लिश में फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं, धारा पर अंग्रेजी किस तरह से बोल सकते हैं, पहले यहाँ पढ़ा। इमर्ज योर सेल्फ इन लैंग्वेज का मतलब है आपको भाषा में डूब जाना है, यानी कि आपको केवल इंग्लिश का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इंग्लिश मूवी देखनी है, म्यूजिक और पॉडकास्ट, बुक्स, ये सारा कुछ, ये जो ना इस तरह जब आप डूब जाओगे तो ये एक्सेलरेट करेगा आपकी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को, तो ये जल्दी आप सीख जाओगे। रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार आपको प्रयास करना वो ज़रूरी है। डेडिकेटेड एफर्ट्स आपको करने होंगे, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। अगले पॉइंट में हमने पढ़ा कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें अंग्रेजी अच्छे से सुनना और फिर बोलना होगा। अगर हम अंग्रेजी को अच्छे से सुनते नहीं हैं, इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाते नहीं हैं, अगर हम बोलते भी नहीं, अगर हम सुनते भी नहीं हैं, तो फिर हम इंग्लिश सीखेंगे कैसे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है कि हम इंग्लिश बोलते हुए दूसरे लोगों को सुने, ध्यान से सुने और फिर बोलें। तो ये है स्पीक स्पीक स्पीक। लैंग्वेज ग्रुप्स को ज्वाइन करके, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो इन पर्सन है, उनमें पार्टिसिपेट करके, भाग ले करके जल्दी से अंग्रेजी सीखी जा सकती है। लैंग्वेज लर्निंग ऐप आ गई हैं बहुत सारी, आप उनकी सहायता से भी अंग्रेजी सीख सकते हो। और अपनी वोकेबलरी का मतलब है आप अपना शब्दकोश बढ़ा सकते हो। रोज़ नए नए सेंटेंसेस आपको सीखने हैं। इंग्लिश न्यूज़ और शोज़ जो है वो आपको देखने हैं, टीवी में आप देख सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो लैंग्वेज क्लासेज आप ले लीजिए, किसी मेंटर टीचर की, एक्सपर्ट की मदद से आप लैंग्वेज क्लासेज ले सकते हैं। और जब आप इंग्लिश सीख रहे हों तो बोल के देखिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में सुनिए आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा था, तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। नेटिव स्पीकर्स की आप मदद लीजिए, अगर
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप अंग्रेजी में बात कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई लोकल या अपने परिवार में या अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको ऊंची आवाज़ में बोल करके पढ़ना है और उससे प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होगी और आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। टोस्ट मास्टर्स और स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लब में जा सकते हैं। आजकल आप देखते हो मॉल्स वगैरह में भी संगीत जो चल रहा हो तो वो इंग्लिश का ही वाला ही चल रहा होता है। हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स भी आजकल इंग्लिश वाले पढ़ने का ट्रेंड है। सॉन्ग्स भी गाड़ी के अंदर जो है इंग्लिश वाले चलते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट के लिए है। हमें पेशेंट का मतलब यहाँ पर हमें धैर्यशाली बनना पड़ेगा और ये लगातार प्रयास कर परसिस्टेंट का मतलब लगातार प्रयास करते रहने होंगे, क्योंकि फ्लुएंसी जो है वो समय लेगी आपको। जब तक धारापुर अंग्रेजी आएगी उसके लिए समय लगेगा और बीच बीच में ना आप कई बार आहत हो सकते हैं, आप कई बार मायूस हो सकते हैं। ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है और इन चैलेंजेस के बीच में आपको लगातार प्रयास करते रहना है और जो छोटी छोटी आपकी सफलताएं हैं कि मैंने क्या सीख लिया उनको सेलिब्रेट करना को चाहिए। आप इसके लिए विदेश में जा कर के पढ़ सकते हैं और वहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप से अलग अलग साउंड और एक्सेंट वाले लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है, वहाँ भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं। हमें हर रोज़ 12+12 का रूल यानी कि कुछ सेंटेंसेस 12 सेंटेंसेस 12 न्यू वर्ड ऐसे लेने चाहिए जो हमने कभी पहले नहीं पढ़े या नए थे। तो ऐसे करके भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। लास्ट में बताया कि कौन से वो पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। एंड की इज़ कंसिस्टेंट एफर्ट, और जो इसमें लगातार प्रयास करने से ही आएगी इंग्लिश। और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना है लर्निंग के प्रति, ऐसा नहीं कि हम भूल गए तो फिर प्रयास नहीं करें। इसलिए हमें कुछ धैर्य रखना होगा। रोम एक दिन में नहीं बन गया था। चीज़ें होने में, कुछ सीखने में समय तो लगेगा ही, इसलिए समय को समय दीजिए। आप जो लैंग्वेज एक्विजिशन की ये जर्नी है, लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं, उस यात्रा को आप सेलिब्रेट कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आप एक दिन सफल हो जाएंगे और आपको अंग्रेजी आ जाएगी, धारापुर आप अंग्रेजी बोल सकेंगे। तो मुझे लगता है आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत लाभकारी रहा होगा। मिलता हूँ आपको एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फॉर नाउ।